Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I'm here with the session of True False Not Given. I know you all have been waiting eagerly for this session. You all are facing problem in True False Not Given. So today I'll try to help you in conquering this problem. So let's get started guys. So we have true false not given today. So whenever we have to do true false not given, as I mentioned earlier, okay, so whenever we'll be doing questions like such, we'll definitely skim read the passage, okay. So we'll skim read every passage except the one with headings. Are you getting my point? देखो, I know there are so many students out there who actually face problem in skim reading and scanning. They are like, they get confused what exactly is this skim reading, what is scanning. So for you all, I'll explain you skim reading and scanning first. देखो, अगर इसे आप simple words में, if you want me to explain it to you in simple words, so that is skim reading basically is reading fastly, okay. So skim reading is reading at fast pace, simply speaking, and scanning is reading slowly. Okay, so reading slowly is scanning and skim reading is reading at fast pace. You can also say one thing, scanning is can also be termed as understanding, because whenever you are scanning you are actually understanding the text, okay, and you are focusing more on the understanding part, okay, comprehension part. But when it comes to skim reading, you're just reading it, okay, you're reading at a glance, so that is just reading at fast pace. So difference is, in skim reading we just read the passage, whereas in scanning we understand the passage. I hope you understood my point here. So we'll skim read every passage. We'll skim read every passage except the one with headings. So हर एक passage पढ़ना ही पढ़ना है. कौन सा नहीं पढ़ना? जिसमें headings हैं. क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि headings के लिए हमें scanning करनी पड़ती है, मतलब हमें understanding करनी पड़ती है. So हर एक paragraph वैसे भी detail में पढ़ना पड़ता है. There is no point कि हम waste करें वहाँ पे time scanning में. Okay, so that's what we'll be doing here. ठीक है, आगे proceed करते हैं guys. देखो, ये स्किम रीडिंग एंड स्कैनिंग हमें पता चल गया, ठीक है. अब पता है इसमें बेसिकली वी हैव ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. बट देखो, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी है, बट इस पैसेज की अगर मैं बात करूं डियर फार्मिंग की, सो दिस पैसेज हैज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एज वेल एज हेडिंग्स. सो हेडिंग्स बट अभी हम नहीं कर रहे. जब हम हेडिंग्स करेंगे तो हम स्किम रीडिंग नहीं करेंगे, ओके. सो टुडे लेट्स actually assume we have only true false not given here. तो हमें क्या करना है? We have to skim read the passage. And what exactly do we need to do जब हम skim reading करेंगे? बस जल्दी से पढ़ लेंगे एक बार, और कितना टाइम डिवोट करेंगे? Not more than 5 minutes. I hope you understood this clearly. Not more than 5 minutes, okay? So let's get started, okay? कौन कौन से words में circle करने वाली हूँ यहाँ पे, उस पे भी ध्यान दो. Proper noun. Proper noun is the name of a particular person, place, animal, thing, some year, some date. Okay, so that's what we'll be doing. So let us get started. Deer are not indigenous. ठीक है, deer are not indigenous to Australia. They were introduced into the country during the 19th century. So we have 19th century here, under the acclimatization program governing the introduction of exotic species of animals and birds into Australia. Okay, ठीक है. So 6 species of deer were released at various locations. So we have got to know 6 species. ठीक है, various location. The animals dispersed मतलब scatter हो गए, इधर उधर फैल गए, okay. So, and established wild populations at various locations across Australia, mostly depending upon their points of release into the wild. These animals form the basis for the deer industry in Australia today. Commercial deer farming in Australia commenced in Victoria in 1970. Okay, so commercial deer farming, with the authorized capture of Rusa deer from the Royal National Park NSW. Until 1985, only 4 species of deer, 2 from temperate climates, red fallow, and 2 tropical species, Rusa cheetal, were confined for commercial farming. So
खाली 2 ही हमने लिमिट करे किसके लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए. लेट इन 1985 प्रेशर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंक्रीज हर्ड नंबर्स सॉ द डेवलपमेंट of import protocols. कोई policy आई. This resulted in the introduction of large number of red deer hybrids from New Zealand and North American elk directly from Canada. The national farmed deer herd is now distributed throughout all states, although most are in New South Wales and Victoria. So distribute हो गए हैं हर जगह, हालांकि ज्यादातर न्यू साउथ, मोस्ट आर इन न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया. ठीक है. सो अभी तो अगर आपने नोटिस करो, मैं आपको समझा रही थी, तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ, हम बीच में थोड़ा थोड़ा समझ भी रहे थे. तो ये तो काइंड ऑफ हो गई स्कैनिंग. थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे तो अच्छे से स्कैनिंग हो जाएगी. जहां जहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है बस उसे आप सर्कल कर लो. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी डिड. ठीक है. बट नाउ व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग इज रीडिंग एट फास्ट पेस. द नंबर ऑफ एनिमल्स प्रोसेस्ड एनुअली हैज कंटिन्यूड टू इंक्रीज डिस्पाइट द डाउनवर्ड ट्रेंड इन वेनिसन प्राइसेस सिंस 1997. Of concern is the apparent increase in the number of female animals processed and the number of whole herds committed for processing. With more than 40,000 animals processed in 1998 and 99 and 60,000 in 1999-2000, there is justified concern that future years may see a dramatic drop in production. At least 85% of all venison produced in Australia is exported, principally to Europe. At least 90% of all velvet entrail produced is exported in an unprocessed state to Asia. Schemes to promote Australian deer products continue to have a positive effect on sales, that in turn have a positive effect on prices paid to growers. Okay, the industry appears to be showing limited signs that it is emerging from a state of depression caused by both internal and external factors that include the Asian currency downturn, the industry's lack of competitive advantage in influential markets, particularly in respect to New Zealand competition, and within industry processing and marketing competition for limited प्रोडक्ट वॉल्यूम्स ऑफ वेनिसन. गाइस वेनिसन बहुत बार सुन लिया तो वेनिसन समझ भी लो. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? इट इज द मीट ऑफ डियर. वेनिसन इज मीट ऑफ डियर. सॉरी, मीट ऑफ डियर इज वेनिसन. ओके. नाउ देखो गाइस, ये है स्किम रीडिंग. अभी तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, सो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा लगती है एंड स्पीड स्लो हो जाती है. जब आप अपने माइंड में ही पढ़ रहे होगे, यू हैव टू रीड इट इन योर माइंड. व्हेन यू विल बी रीडिंग इट इन योर माइंड, यू विल नॉट वेस्ट मच टाइम एंड आपकी स्पीड एक्चुअली ज्यादा होगी. ठीक है. सो अब हमें ये पता चल गया कि मेन प्रॉपर नाउन कहाँ पे, यूरोप कहाँ है, 90%, 80%, 40,000 एनिमल्स इस ईयर में. देन 1999-2000 में ये हुआ. इंडस्ट्री शोइंग लिमिटेड साइंस इफेक्ट ऑन प्राइसेस पेड टू दिस. इंडस्ट्री अपीयर्स टू बी शोइंग दिस. सो वी हैव गॉन थ्रू दिस. द एशियन करेंसी डाउनटर्न. ठीक है. Industry's lack of competitive advantage. So what are we doing? We have underlined the major keywords along with year as well as date or some number. Okay. So this is the way we'll be skim reading. ठीक है. अब guys जब हमने skim reading कर ली है, देखो लेट्स से आपने स्किम रीडिंग करी है. ठीक है. आप पूरे 5 मिनट्स डिवोट करना और पूरा पैसेज स्किम रीड करना, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग क्लास नोट्स ऑन टेलीग्राम. ठीक है. मैंने पिछले वाले 3 सेशंस के ऑलरेडी हैव शेयर्ड, सो आई विल बी शेयरिंग दिस एज वेल. ठीक है. सो तब आप स्किम रीडिंग करके फिर समझना एंड करना, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. ओके. सो नाउ read the passage about deer farming in Australia again and look at the statements below. In boxes 33 to 37 on your answer sheet, write true, false or not given. So basically इतना तो clear है कि question true, false, not given के ऊपर है. So let us get started with the first question here. Until 1985, मतलब 1985 तक, let us change the color here. So until 1985, sorry, it's slide. Yes. So now until 1985, only 2 species. So only 2 species of originally released Australian deer were not used for farming. So
ये बोल रहे हैं ओनली 2 species of originally released और Australian deer were not used for farming. But let's say वहां पे क्या बोल रहे हैं, मेजर कीवर्ड क्या है 1985 मेजर कीवर्ड ओनली 2 species, 2 species, ठीक है, Australian deer not used farming. So 2 species 1985 Australian deer. Let's see where is it exactly. फिर वहां जाके हमें क्या करना है, कीवर्ड्स मिल गए तो we'll start scanning. So 1985, our first keyword is 1985. So and you know true false not given 90% केसेस में 95% केसेस में सीक्वेंस में ही होते हैं. ऐसे ही फिलअप्स भी आपको यूजुअली ऐसे मिल जाते हैं. ओके, so until 1985, okay, so we have found a keyword here. Until 1985 only 4 species of deer, so only 4 species of deer, 2 from temperate climates, red fallow, 2 tropical species, rusa cheetal, ठीक है, सॉरी चीटाल, वर कन्फाइंड फॉर कमर्शियल फार्मिंग. सो वो बोल रहे हैं कि until 1985, ठीक है, so they are saying until 1985 only 4 species of deer, 2 टेम्परेट क्लाइमेट से थे एंड 2 ट्रॉपिकल स्पीशीज थे, वो कन्फाइंड थे, लिमिट करे गए थे कमर्शियल उसके लिए. लेट इन 1885 हुआ क्या, देखो अब यहाँ पे पॉइंट इज दिस कि हम थोड़ा सा ध्यान से हर एक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे जिससे कि वी गेट टू नो एवरीथिंग. इन्होंने बोला 4 स्पीशीज वर कन्फाइंड फॉर कमर्शियल फार्मिंग, 4 स्पीशीज ऑफ डियर, 2 फ्रॉम टेम्परेट क्लाइमेट्स, 2 फ्रॉम 2 ट्रॉपिकल स्पीशीज. ये लिमिट करे गए थे कमर्शियल फार्मिंग के लिए कि कमर्शियल फार्मिंग खाली इन्हीं चारों की होनी है और किसी की नहीं होनी है. व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? So basically the question is saying the opposite. Until 1985 only 2 species of originally released Australian deer were not used for farming. Confined का मतलब क्या होता है, लिमिट कर दी है फार्मिंग के लिए, ठीक है. So not used for, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि खाली 2 species ही यूज नहीं हुए थे फार्मिंग के लिए. पर देखो पॉइंट इज गाइस, इससे जरा ध्यान से समझो, एक्चुअली में भी बात यही है, ठीक है, कि 2 स्पीशीज नॉट यूज्ड फॉर फार्मिंग. दोबारा से पैसेज देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह. देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 4 स्पीशीज वर लिमिट फॉर, ठीक है, वर लिमिटेड फॉर कमर्शियल फार्मिंग, मतलब 4 स्पीशीज यूज कर रहे थे. बट टोटल स्पीशीज कितनी थी, 6 species of deer were released at various locations. Okay, so 6 species थी डियर की जो रिलीज हुई थी. अब वो 6 में से आउट ऑफ दीज 6 4 को उन्होंने कन्फाइन करा था कमर्शियल फार्मिंग के लिए. ओके, सो 2 जो थे वो नहीं कन्फाइंड थे, बट नॉट यूज्ड फॉर कमर्शियल फार्मिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हम खाली एक लाइन पढ़ के आंसर नहीं निकालेंगे, वी हैव टू रीड अदर लाइंस एज वेल. ओके, सो डेफिनेटली द आंसर इज ट्रू हेयर. क्यों ट्रू है? क्योंकि 1985 तक खाली 2 स्पीशीज ही जो ओरिजिनली रिलीज ऑस्ट्रेलियन डियर की थी, वो खाली 2 स्पीशीज यूज हुई थी फार्मिंग के लिए. 4 स्पीशीज यूज, सॉरी, I'm really sorry. Yeah, it's my wrong. So until 1985, only 2 species of the originally released Australian deer. खाली 2 species use नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि 4 species, 2 from 2 tropical species, 2 from temperate climate were confined for commercial farming. मतलब वही यूज हो रही थी कमर्शियल फार्मिंग के लिए. 6 minus 4 2 बचे तो 2 नहीं यूज हो रही थी. So definitely the answer is true here. Okay, now we have got a first answer. So definitely जो second answer होगा हमारा उसके आसपास ही होगा. Usually यही चीज होती है. We'll find second answer nearby only. So let's get started. Since 1985, ठीक है, many imported deer have been interbred with the established herds. So वो कह रहे हैं कि 1985 से, ठीक है, सिंस 1985 मतलब 1985 से मैनी इंपोर्टेड बियर, सो इंपोर्टेड बियर, ठीक है, सॉरी, सो सिंस 1985 मैनी इंपोर्टेड बियर have been interbred. Okay, breeding हुई है, interbred with the established herds. जो established herds थे वहां पे ग्रुप्स थे. herds is like a
बेसिकली क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है. सो हर्ड्स इज लाइक ग्रुप ऑफ डियर्स को वो हर्ड्स बोल रहे हैं. सो इंटरब्रेड करे थे, वो कह रहे हैं कि 1985 से मैनी इंपोर्टेड डियर को इंटरब्रेड करा है किससे, एस्टैब्लिश हर्ड्स के साथ. सो लेट्स से यहाँ पे ऐसी बात कहाँ हुई है हमारी. सो विल प्रोसीड फर्दर. लेट इन 1985, सिंस 1985 के बाद की बात वो कर रहे हैं. Pressure from industry to increase herd numbers saw the development of import protocols. So उन्होंने यहाँ पे बात करी है कुछ. So late in 1985 first keyword pressure from industry to increase herd भी हमें मिल गया. Saw the development of import protocols, import भी मिल गया. But this resulted in the introduction of large number of red deer hybrids from New Zealand and North American elk directly from Canada. मतलब ये imported deers की बात कर रहे हैं. The national farm deer herd is now distributed throughout all states, although most are in this and this. So guys, basically उन्होंने वो बात तो कहीं करी नहीं है. उन्होंने मेनली ये बोला है कि लेट इन 1985 के एंड के आसपास प्रेशर था इंडस्ट्री की तरफ से कि इंक्रीज करें हम हर्ड नंबर्स. ठीक है, सो इंक्रीज करें हर्ड नंबर्स, जो भी ग्रुप नंबर्स है वो इंक्रीज करें, और इसकी वजह से डेवलपमेंट हुई इंपोर्ट पॉलिसी की. प्रोटोकॉल एज इन पॉलिसी ऑफ सम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. सो उन्होंने ये बात करी कि पॉलिसी की, ठीक है, डेवलपमेंट हुई. बट वहां पे दे आर सेइंग, दे आर टॉकिंग अबाउट सम इंटरब्रेड. ओके, इंटरब्रीडिंग, ब्रीडिंग रिलेटेड बात करें कि ये ब्रीडिंग हुई विद एस्टैब्लिश्ड हर्ड. बट ऐसा कुछ भी उन्होंने उसकी नेक्स्ट लाइन में भी नहीं बताया और इसमें भी नहीं बताया. सो डेफिनेटली द आंसर इज नॉट गिवन. Coming to the next one, guys, the drop in deer numbers since 1997. So drop मतलब fall, deer numbers 1997 से led to an increase in the price of venison. ठीक है, so led increase price venison. Okay, so the drop in deer numbers, जो drop हुआ है deer के numbers में 1997 से, ठीक है, it led to an increase in the price of venison. इसकी वजह से increase हुआ price of venison, मतलब कि मीट का प्राइस बढ़ा है, कि बियर का नंबर ड्रॉप हो गया 1997 से और मीट प्राइस इंक्रीज हो गया. सो लेट्स सी द ड्रॉप इन डियर नंबर्स 1997, increase in price of venison, where has it been mentioned? So यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, will not read it. The number of animals processed annually has continued to increase despite the downward trend of venison prices. यहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टी बात करी है ना, totally opposite guys. जरा ध्यान से देखो, the number of animals processed annually, जो भी नंबर थे एनिमल्स, जितने नंबर प्रोसेस होते थे एनुअली, वो इंक्रीज हो रहे हैं, has continued to increase. Okay, so increase है डिस्पाइट दी, हालांकि डाउनवर्ड ट्रेंड है वेनिसन प्राइसेस में. मतलब वेनिसन प्राइसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं सिंस 1997. सो 1997 से जो मीट का प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, जबकि नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या मेंशन है, द ड्रॉप इन डियर नंबर्स. उन्होंने ड्रॉप नहीं बोला, उन्होंने बोला इंक्रीज इन डियर नंबर have led to an increase in, बिल्कुल ऑपोजिट बात. यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज बोला था, यहाँ पे डिक्रीज बोला था, और यहाँ पे ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है. सो व्हाट इज इट, इट इज डेफिनेटली false. I hope you are able to understand what exactly I'm explaining. So guys, बस ध्यान से पढ़ना है, कीवर्ड्स ढूंढने हैं. जहां पे कीवर्ड्स मिल गए आपको, मेजर कीवर्ड्स हमारे पता है कौन से होता है, ईयर. जिस भी एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक में जिस भी क्वेश्चन में ईयर मेंशन्ड है ना, सो हमें उसके बेसिस पे ढूंढना है. कोई प्रॉपर नाउन मेंशन्ड है उसके बेसिस पे, जहां इंपोर्टेड डियर भी था, एस्टैब्लिश हर्ड भी था, तो हमें लगा ये इंपॉर्टेंट है सम नाउन, सो वो भी देखा हमने. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन वेनिसन प्रोडक्शन, खाली एक बहुत ही छोटा अमाउंट, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन वेनिसन प्रोडक्शन. ठीक है, सो स्मॉल अमाउंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन वेनिसन कंज्यूम डोमेस्टिकली. कंज्यूम मतलब यूज होता है डोमेस्टिकली. स्मॉल अमाउंट ऑस्ट्रेलियन वेनिसन का कंज्यूम होता है. मैंने स्किम रीडिंग करी थी, मुझे याद है कि कहाँ पे ये बात
हुई है, आपको भी ऐसे ही याद होने लग जाएगा. सो व्हेन आई विल बी शेयरिंग द क्लास नोट्स ऑन टेलीग्राम गाइस, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आप जाके वहां पे एक बार स्किम रीडिंग करके देखना, समझना कि मैं जो बता रही हूँ वो मेथड वर्क कर रहा है कि नहीं. आई एम 100% श्योर इट विल वर्क. ओके, सो यहाँ आ जाओ. 1997 उन्होंने बोला एटलीस्ट वेनिसन प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, सो ठीक है, इज एक्सपोर्टेड प्रिंसिपली टू यूरोप. दोबारा एक बार क्वेश्चन देखते हैं. So only a small amount of Australian venison production is consumed domestically. So Australian venison production domestically consumed. So here we'll see, यहाँ पे कोई ईयर मेंशन नहीं था तो इधर पढ़ते हैं. ठीक है, with more than 40,000 animals processed in 1998, 99 and 60,000 in 1999, 2000. There is justified concern that future years may see a dramatic drop in production. Future years may see a dramatic drop. Okay, ठीक है, पर अभी उन्होंने ऐसी बात नहीं करी थी. आगे आते हैं. At least 85% of all venison produced, मतलब 85% of all venison produced in Australia. कीवर्ड मिल गया हमें अपना. So venison produced in Australia 85%, at least 85%. ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर है ये. इज एक्सपोर्टेड प्रिंसिपली टू यूरोप. सो मतलब कि अब क्या हो रहा है कि वेनिसन प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम परसेंटेज ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है. सो इतना क्लियर है ना, अगर एक्सपोर्ट हो रही है तो बाकी की परसेंटेज कहाँ यूज हो रही है, कंज्यूम डोमेस्टिकली. सो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ही, बहुत ही स्मॉल अमाउंट कंज्यूम हो रहा है डोमेस्टिकली. सो डेफिनेटली द आंसर इज ट्रू. क्लियर हो रहा है गाइस? देखो वन बाय वन हमें सीक्वेंस में ही आंसर मिल रहा है. इट्स ऑल अबाउट स्किम रीडिंग. अगर स्किम रीडिंग करी है तो आपको बड़ा इजीली आंसर मिल जाते हैं. अगर यही इसी पैसेज में हमारे पास हेडिंग्स है, जिस भी पैसेज में हेडिंग्स है हम सबसे पहले हेडिंग्स ही करेंगे. फॉर श्योर हेडिंग्स ही करनी है. रीजन, हेडिंग्स पढ़ने के लिए, हेडिंग्स करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पैराग्राफ. उसकी वजह से हम पूरा पढ़ लेते हैं और हमें बाकी के आंसर्स बहुत बार बिना पढ़े भी याद आ जाते हैं. और अगर नहीं याद आते तो लोकेशन तो पक्का याद हो जाएगी. ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन हियर गाइस. करंट इकोनॉमिक कंडीशंस इन एशियन कंट्रीज. जो करंट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं एशियन कंट्रीज में, ठीक है, सो मेजर कीवर्ड मेरा एशियन है यहाँ पे, and financial conditions have had positive effect on Australian deer farming. So इसका positive effect है किस पे, Australian deer industry पे. ठीक है, so Asian economic condition, Australian deer industry. ठीक है, positive effect. So Asian countries, ठीक है, economic condition Asian countries, positive effect on Australian deer industry. So let us see where are they talking about this. हमें आंसर मिल गया था प्रीवियस वन. सो यस, यहाँ पे एक बार एशिया यूज हुआ है वर्ड. schemes to promote this products to have positive impacts. यहाँ पे आ जाओ जरा. At least 90% of all velvet antler produced is exported. ठीक है, 90% of this. वहां पे वेनिसन की बात हुई थी, यहाँ in an unprocessed state to Asia. ओके, ठीक है, सो एशिया की बात हुई है. नेक्स्ट लाइन. कभी भी आपको आंसर लोकेशन मिल जाती है तो मिनिमम आपने 3 to 4 लाइंस पढ़नी ही पढ़नी है. सो 3 to 4 लाइंस आप पढ़ोगे. ठीक है, सो एटलीस्ट 85 schemes to promote ऑस्ट्रेलियन डियर प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट कीवर्ड मिल गया हमारा ऑस्ट्रेलियन डियर इंडस्ट्री. ठीक है, प्रमोट ऑस्ट्रेलियन डियर प्रोडक्ट्स, कंटिन्यू टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेल्स. सो पॉजिटिव इफेक्ट किस चीज पे, ऑन सेल्स. दैट इन टर्न हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्राइसेस. दैट इन टर्न हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्राइसेस paid to growers. Okay, the industry appears to be showing limited signs that it is emerging from state of depression caused by both internal and external factors that include Asian currency downturn. So guys, let us see this question एक बार दोबारा. Current economic condition in Asian countries have had positive effect on Australian deer industry. Actually में ऐसी बात तो उन्होंने नहीं करी है,
दे आर टॉकिंग अबाउट वहां पे फार्मर्स को प्राइस जो दे रहे हैं वो इंक्रीज करने की बात हुई है. सो पॉजिटिव इफेक्ट कि एशियन कंट्रीज में, ठीक है, करेंसी डाउन टर्न आ रहा है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट है. करंट इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, जो करंट फाइनेंशियल कंडीशन एशियन कंट्रीज में है उसका पॉजिटिव इफेक्ट है ऑस्ट्रेलियन डियर इंडस्ट्री में, ऐसा उन्होंने बताया है. लेट अस सी हियर. सो schemes to promote Australian deer products, ठीक है, सिमिलर बात. कंटिन्यू टू हैव पॉजिटिव, मतलब ऑस्ट्रेलियन डियर जो ये स्कीम्स है कि ऑस्ट्रेलियन डियर प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू, ठीक है, इंक्रीज करें, ठीक है, प्रमोट करें. दे कंटिन्यू टू हैव, इनका पॉजिटिव इफेक्ट है सेल्स पे, जिसकी वजह से पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है प्राइसेस पेड टू ग्रोअर्स, मतलब टू फार्मर्स. ओके, सो ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं करा कि एशिया की वजह से, ठीक है, एशिया की करेंसी की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से पॉजिटिव इफेक्ट डियर फार्मिंग के ऊपर आ रहा है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं बताया. सो इट इज टोटली नॉट गिवन, फॉर श्योर इट्स नॉट गिवन, क्योंकि ऐसी बात उन्होंने नहीं करी है. ओके गाइस, जब आप एक बार अब घर पे दोबारा करोगे, यू नीड टू गो थ्रू दी पीडीएफ, और आप दोबारा करोगे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो जस्ट डू वन थिंग, इसे आप एक बार डिटेल में करो. सबसे पहले स्किम रीडिंग करना एंड देन ये वाले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करना. एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ आया कि नहीं आया. अगर आया सो आपने प्लीज मुझे, यू हैव टू गिव मी फीडबैक. ओके, सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मैसेजेस इन द कमेंट सेक्शन. So that's all for today guys. I'll see you guys tomorrow again at 9:30 p.m. Okay, another thing guys, so I'll be sharing the PDF class notes on IELTS underscore made easy. This is the name of my Telegram channel. You can just go and subscribe to my channel, E capital, M capital, IELTS all capital. You can just go and subscribe to my channel. So that's what we need to do today. So guys, that's all for today. See you tomorrow at the same time. Bye. Take care everyone. God bless you.